Hello everyone, very good evening. This side Samaria here. Today is 8th of October and it is Tuesday today and we are doing an investment pick today right now. The stock name is Gujarat Ambuja Exports Limited. This is the monthly chart of the stock. So let's begin. Okay, so basically this stock is continuously into the uptrend. Okay, since it has started around 2001 the rally, it is going into the uptrend. And during the COVID fall, of course, the stock was not able to give much of a returns here. If you will see, sorry, I'm wrong. The stock has performed quite interestingly into 10x series from 20 to 260 basically. If you will see 26 to 260, almost the high has been made 200 maybe nearby around 10x. The stock has somewhat achieved. So basically, coming back to the situation, like what we are expecting here. Okay, if you will see this thing, this is a critical area here, from 100 rupees to 110 areas, but these are all the factual things which we are doing on the monthly chart. Now let's move on to the smaller time frame chart. If you will say this thing, there is a this steep trend line which is coming down. Okay, and this is a perfect trend line. So I would request all of you who want to buy the stock, they can buy the stock aggressively once this trend line is broken and keep the recent swing low as the stop loss. Okay, but for a person like me who has done extensive research in the market, so I can take the entry somewhere here also, and even I will be buying the dips also. The reason is quite simple. The stop loss will be very much less here, almost 8 to 10% of stop loss, and even I will be giving some leverage here to the stock, that even if it fluctuates a bit, like this is the top bottommost low, the stock has reached, the low is almost 107.7. Okay, almost 108. Let's just make it a number here. So this was a critical area for the stock, almost from past October till July. If you will see, like October only, right, nearby here. So एक साल तक इस स्टॉक ने पूरा यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज का एक बनाया है अपना बेस। तो ये दोबारा उस रेंज के आसपास अभी आया है स्टॉक, ठीक है। और बहुत ही कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अभी अपने ऑल टाइम हाई से 52 वीक्स के लो के आसपास चल रहे हैं, तो ये उसमें से एक स्टॉक है। बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक स्टीप ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड की लगी हुई है, एंड इफ यू विल सी द थिंग्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, देयर इज अ क्वाइट वेरी ब्रेक, like good reversal that has happened here today. Reason being, मार्केट पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशन से, इवन 11 ट्रेडिंग सेशन से जो एक रेंज में कंसोलिडेशन करके यहाँ पर काम कर रहा था। करीबन इसका हाई था 129-30 के आसपास का, और नीचे था करीबन 120 का लो, ठीक है। तो 10 रुपये का एक रेंज बना कर रखा हुआ था मार्केट ने, और इसको एक ही कैंडल ने आज ब्रेक डाउन किया विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, ठीक है। हमारे पास पैसे कम है भाई, हम फर्टिन ट्रेडर नहीं ले सकते आपका, ओके। एनीवे, so यहाँ पर पिछले 10-15 दिन की रेंज इसने एक कैंडल ने काटी है। सो व्हाट कैन एक्चुअली हैपन इज, जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया है अभी, तो यहाँ पर हो सकता है एक बार दोबारा रीटेस्ट करे, डब्ल्यू पैटर्न बनाए या डबल बॉटम बनाए, कुछ ऐसा करके। ओके, एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक यहाँ से कहीं ना कहीं शायद नीचे एक बार करेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसके चांसेस रहेंगे। सो अगर किसी को बाय करना है ये स्टॉक, तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 3 to 5% यू कैन एलोकेट। सपोज करो अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो है, you can deploy like say 30 to 40,000 rupees in this particular stock, and that too you can buy in the chunks. Okay, so how you can do that, like basically buy few 10,000 rupees of stock value here 130, and once it comes to 120 again, then you can buy. Otherwise 110 to 108 is also the next buy. Okay, so basically every 10 rupees drop I will be buying the stock personally in my portfolio. Okay, but again the values can differ because I have some behavior analysis techniques, so I define myself how I want to buy aggressively and how I want to buy just for the stock to be in the portfolio, so that I can remember when this some level comes as per my alert, I need to buy aggressively. Okay, so the thing is like this is a good stock, and let's talk about the potential upside target. Okay, and again I'm telling you, for every 10 rupees drop I will be adding the stock. Okay, so the stop loss begins after 108. Okay, and I will be giving the stock a good amount of value here. So basically the stop loss will be around like say 10 rupees. I will be exiting if it comes to 90 to 80 rupees. Okay, 90 to 80 rupees, or probably 95, because this is going to be very critical zone here for the stock. Let me just mark the demand supply here. Okay, this is the horizontal ray. I want horizontal line. Okay, so this is a very critical mark here.
ओके, तो ये जो इसका 85 से 97 रुपीज़ तक का एक जोन है ना, बेसिकली ये एक क्रिटिकल इसकी डिमांड बनेगा अगर स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता भी है तो। हाँ, बट अगेन उस केस में अगेन आपके पास, मैं आपको सिंपल चीज़ बोलूँगा बॉस, अगर आपके पास स्टॉक आपने 130 पर बाय किया है, उसके बाद 120 पर एवरेज किया, फिर 110 पर बाय किया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ से नीचे आकर आपको स्टॉप लॉस काटता है तो आप काट सकते हो, ठीक है। देयर विल बी हार्डली लाइक लेस लॉस। ओके, अगर आप यहाँ से देखते हो तो एवरेज आपका कहीं ना कहीं 120 का बनेगा, और 120 के आसपास अगर आप देखोगे आपका जो लॉस होगा इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज, it will be around 20% or somewhat like that. Okay, but the chances of this happening is very very less. But again, since this is market which we are speaking about and anything can happen, and again I'm not SEBI registered, so please make all your investments by consulting a very registered SEBI registered advisor, and money is your own, of course. The amount of risk you will be taking is up to you. I am just doing the analysis here for the educational purposes only. Okay, so if you like my view you can do the things, otherwise it's up to you. The only reason for letting the stock into the condition is buying condition is because it is making a good risk to reward here, और मेरा यहाँ पर 110 के आसपास तक यहाँ पर बाय जोन ही रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर, ओके सॉरी, लगाना कुछ और होता है, लग कुछ और जाता है भाई साहब। ओके, तो मैं यहाँ पर इसका बायर हूँ 110 रुपये तक। कहाँ गया भाई, अबे लग जा, चल यहाँ पर आ जा, ठीक है। ओके, सो समवट दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड द टारगेट व्हाट आई एम एमिंग इज all time high. Okay, so if you are getting a 20 rupees or 14 rupees of risk to reward, but again this is not even the risk to reward because मैं यहाँ पर नीचे से फिर से बाइंग ही कर रहा हूँ। एंड अगर आप यहाँ पर एवरेज देखोगे जो कि अभी आई नहीं है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं इसका 110 के आसपास तक भी बाइंग करूँगा। एंड अगेन इसके ऊपर के जो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं 60% या इसके ऑल टाइम हाई तक के मैं देख रहा हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम एक्चुअली सीइंग इट ऑन द अपसाइड चार्ट्स, द टारगेट्स, दीज और हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द टारगेट्स प्लस रेजिस्टेंसेस एज वेल। तो पहला ही इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ये 147 या 150 के आसपास का एक रेजिस्टेंस का जोन आएगा, ठीक है। अगर इसको काट देता है तो अगले रेजिस्टेंसेस के जोन ऊपर प्लॉटेड है। नाउ सम ऑफ यू विल आस्क मी सर लाइक यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस है बहुत क्लोज है, उसका रीज़न क्या है बॉस? क्योंकि ये जो स्टॉक है पिछले 2 साल से इसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी है। 2022 में इसने जो एक ब्रेकआउट दिया था उसके बाद इमीडिएटली नीचे आ गया, और उसके बाद पिछले 1.5-2 साल से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टॉक लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन फेज में चलते हैं या तो वो उसके बाद फिर से अपना दम तोड़ देते हैं और नीचे गिर जाते हैं, अदरवाइज जब वो एक बार ट्रेंड दोबारा रिज्यूम करते हैं तो लाइक चांसेस आर हाई कि वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग हैपनिंग हुई है सिर्फ आज के दिन, और इस स्टॉक के ऊपर हमारी जो नज़र थी पिछले यहाँ पर 1.5-2 महीने से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। 2024 के स्टार्टिंग में हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था कि अगर ये नीचे आता है इस लेवल के आसपास 130 के आसपास, तब हम इसको बाइंग करेंगे। प्लस इसका 4 जून का जो एकदम जहाँ पर आपको याद होगा कि 4 जून के दिन इंडेक्स जो हमारा 8 से 10% तक करेक्ट हुआ था ना, तो ये वो वाला स्टॉक है जो इतना गिरने के बाद सेम डे के बाद उसके बाद इसने रिवर्सल दिया था। ऑफ कोर्स यू कैन से कि सर उसके बाद तो बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर इमेंस बाइंग हो रही है। यहाँ पर अगर आपको मैं वॉल्यूम चार्ट दिखाऊं एक बार, सो यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पर वॉल्यूम कितना आया है, ठीक है। यहाँ पर जो एवरेज वॉल्यूम है इसका आप देख सकते हो 2.7 मिलियन, 1 मिलियन, 400,000, 700,000 ऐसे ऐसे कर चल रहा है, ठीक है। पर जब यहाँ पर वॉल्यूम में बाइंग आती है ना 16 मिलियन की, उसके बाद भी स्टॉक नीचे जा रहा है, पर अगेन एक्सटेंसिवली नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई बायर खड़ा है ना, तो अगेन हर बंदा अपने हिसाब से स्टॉक्स को एनालाइज करता है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन बाइंग हो रही है, और ये स्टॉक को अगर ऊपर लेकर जाना होगा तो ये फाड़ देंगे यहाँ से फिर, ठीक है। मैं अगेन इसमें कोई एक्सप्लोसिव रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द सेटअप विच इज कमिंग इनटू द 2x to 10x सेटअप, ठीक है। 2x to 10x सेटअप बेसिकली हमारा वो वाला सेटअप होता है जो हमारा 1 से 5 साल तक के लिए हम अपने किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं फॉर 2x to 10x रिटर्न्स, ठीक है। तो हो सकता है वो रिटर्न्स आने वाले 6 महीने में आ जाए, हो सकता है वो आने वाले 3 से 4 महीने, 3 से 4 साल में भी ना आए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक। नाउ द ओनली थिंग विच मैटर्स इज इसका पहला जो रेजिस्टेंस का जोन है वो है 147 से 150 के आसपास। उसके बाद इसका ये वाला 2 रेजिस्टेंस के जोन है 155 से लेकर 160 का, और दूसरा है 170 से लेकर 175 का। इसके 2 इंपॉर्टेंट जोन है,
बाकी की लाइंस को आप बीच में से चाहे डिलीट भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जोन हैं इसके। तो इसके बाद जैसे ही ये वाला जोन होगा तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो आप ये मान सकते हो कि अगले जोन के लिए जाएगा, और इस जोन के ऊपर अगर निकल गया तो ये वाला जोन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड वंस आई एम टेलिंग यू मार्क दिस थिंग ऑन योर चार्ट्स एज वेल, एक बार 190 या 195 के जोन के ऊपर निकल गया ना तो इसका ऑल टाइम हाई बहुत ही जल्दी आएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर ऐसा कैंडल कुछ बनता हुआ आपको दिखाई देगा बहुत जल्दी, एक ऐसा बड़ा कैंडल, ठीक है। सो अगेन एक सर्टेन लेवल के बाद जो बाइंग में मोमेंटम होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज़ दिखाता हूँ। बीएसई के चार्ट में हमने यहाँ पर इसमें मतलब ये स्टॉक हमारे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ है, बट इसको हमने फिर से एनालाइज किया था, ठीक है, कि यहाँ से जो टॉप था बेसिकली तो यहाँ तक इसमें अच्छी खासी मतलब धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रही थी। बट अगेन उसके बाद जब यहाँ पर ये वाला इस पॉइंट पर आया था ना, हमने इसको यहाँ पर बाय किया था। उसके बाद यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हमने यही वाला स्विंग का लगाया था। मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन किया, बट एक बहुत ही इमेंस ब्रेकआउट आया था और इस दिन करीबन स्टॉक 18 से 20% गया था। मतलब एक कैंडल में यहाँ पर पिछले सारे के सारे रेजिस्टेंसेस ऑल टाइम हाई और सब कुछ पता नहीं क्या क्या फट गया था इसमें। और वॉल्यूम देखोगे सेम डे में इसमें था करीबन 10 मिलियन का, ठीक है। उसके बाद अगले दिन यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। उसके बाद इमेंसली अगले दिन फिर से 15 मिलियन का वॉल्यूम, एंड अगेन द स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज। और यहाँ पर इतना बड़ा फॉल आने के बाद फिर से स्टॉक उतना ही सैंडविच पैटर्न के हिसाब से ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बना है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम था उसके बाद ये सेलिंग का वॉल्यूम कम आया, उसके बाद बाइंग का वॉल्यूम फिर से ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर अगेन स्टॉक फिर से 4200 के ऊपर जा चुके, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल इजीली 4500 का दिख रहा है, ठीक है। तो बट अगेन ये स्टॉक मैं अभी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज हमारे पास बहुत नीचे लेवल्स से पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इसी चीज़ की हमेशा बात करता हूँ, बाइंग इज ऑलवेज टू बी डन एट अ लेवल वेयर आपका स्टॉप लॉस सबसे कम लगे और आपके पास ऊपर के टारगेट्स बहुत ईजी हैं, ठीक है। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, ये 2x to 10x सेटअप में हमारे पास आया था 2000 मेरे ख्याल से 21 में आया था। उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी करीबन 250 to 60 के आसपास हमने इसको बाइंग किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये 250 to 60 का जोन था इसका एक यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट के पास हमने इसको बाइंग किया था एंड यू कैन सी दिस थिंग लाइक एक्सपेक्टेशन तो था कि ऊपर जाएगा, बट अगेन यहाँ से जो सीधा ही 200 से इसने 1000 रुपये का लेवल मारा था, उस 1000 रुपये से फिर से ये नीचे करेक्ट होता है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो ऊपर से फिर से कहीं ना कहीं करेक्ट होता है 60%। उसके बाद 60% के बाद करेक्ट होने के बाद फिर से इसी लेवल से 400 से आज 4000 हो गया। तो मार्केट है भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ इस मार्केट में कभी भी कुछ भी कितना भी हो सकता है। द पॉइंट इज ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉसेस चेक्ड। आप लॉस कितना ले सकते हो उसको हमेशा डिफाइन करो, क्योंकि अभी अगर आपको लगेगा भाई बीएसई तो बहुत ऊपर जा चुका है, चलो अब मैं यहाँ पर बाइंग कर लेता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, भाई यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो यहाँ पर मेरी लग जाएगी, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर रिटेल हमेशा एंट्री करता है ठीक है। तो उसकी वहाँ पर लंका लगती है, जितने भी लोग होते हैं वह यहीं पर गलती हमेशा करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बोल रहा हूँ कि मार्केट में हमेशा थोड़ा सा ध्यान से काम करो। अभी यहाँ पर मेरे को काम करने को मिल रहा है और इवन हर 10-10 रुपये पर नीचे अगर गिरेगा तो मैं बाइंग ही करूँगा इसमें। मेरे को नहीं पता नीचे आएगा भी कि नहीं आएगा, दैट्स व्हाट द सर्टेन अनसर्टेन एरिया इज अबाउट, ठीक है। तो अगर नीचे आता तो मैं इसको बाइंग ही करूँगा, इसके अलावा मैं और इसमें कुछ नहीं करूँगा। एंड सेकंड थिंग इज इसके अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पर मैं ऑल टाइम हाई के लिए बेसिकली प्लान करूँ, बट अगर किसी को बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है तो कर सकते हो। इसका आने वाला टाइम करीबन मेरे ख्याल से 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स के बीच में इसको रख सकते हो फॉर द इन्वेस्टिंग इसका जो एरिया रहेगा, ठीक है। So this is the short analysis of GAEL, and if you will talk about the fundamentals of the company is almost 6,000 crore rupees of market cap, the stock PE 17 and book value इसकी 60 की है, ठीक है। तो बोलोगे 60 की सर बुक वैल्यू अभी 130 का चल रहा है तो डबल तो ऑलरेडी है। तो भाई कंपनी थोड़ी सी अजीब है, ठीक है, मतलब अजीब इन द सेंस PSU का स्टॉक है बट अगेन चला नहीं है, ठीक है। अंबुजा ग्रुप में भी शायद PSU नहीं है, ये मैं गलत बोल रहा हूँ एक बार खुद से चेक करना पड़ेगा। हर गुजरात वाली कंपनी PSU नहीं होती मैं GNFC से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ इसको। एनीवेज द गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी इज द रोस एंड रो बोथ आर इनटू 2 डिजिट्स, ओके, दैट इज अ गुड थिंग हियर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री विच इज अगेन पॉजिटिव साइन, ग्रीन फ्लैग। तो उसके बाद सेल्स इसकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बट अगेन नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर दैट इज इंक्रीजिंग हियर। तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ, फंडामेंटल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं लगेंगी, बट अगेन टेक्निकल ही आपको एक ऐसा हथियार है आपके पास जो आपको बता सकता है कि कहाँ पर किस स्टॉक में कैसे आपको एंट्री करनी है, ठीक है, विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क एज वेल, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ एक चीज़ है कि भाई इसका प्रमोटर की होल्डिंग कंसिस्टेंट जा रही है, जो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है। इवन अगर आप देखोगे तो FIS की जो होल्डिंग्स थी यहाँ पर उन्होंने 2022 में इंक्रीज़ की थी, उसके बाद धीरे धीरे कर यहाँ पर फिर से कम की, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ की और ड्रास्टिकली सितंबर 2024 में इसी साल उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बेची हैं।
एंड DIIs ने अपना माल काटा है, तो पब्लिक के पास और प्रमोटर के पास माल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक मतलब ये थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चीज़ है कि भाई DIIs और FIIs दोनों ने अपना माल काटा है, बट प्रमोटर के पास होल्डिंग अपनी कांस्टेंट पड़ी हुई है। तो अगेन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टेक इट एज एन एजुकेशनल पर्पजेज बेसिस कि भाई मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। और हर स्टॉक जो फंडामेंटली ज़रूरी नहीं कि प्रमोटर के पास हो या FII के पास हो, वो ज़रूरी है कि वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनी जो हमने पास में ली थी जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 30% थी इवन, तो उन्होंने भी इवन 2x to 10x के रिटर्न्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है। It all comes down to your personal analysis and what is your क्या बोलना टेक अपॉन द फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर अगर एक नीचे घूमेगा तो भाई मेरे को सिर्फ इसमें बाइंग करनी है हर 10 रुपये के लेवल तक, 110 रुपये तक ही इसमें मैं बायर हूँ। उसके बाद अगर मेरे को दिखेगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ये जो इसका क्रिटिकल लेवल है इसका, जो मैंने पहले भी आपको मार्क करके दिखाया था ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, तो ये इसका एक जो लेवल है इसके नीचे अगर जाएगा तो इसमें एग्जिट हो जाएगा बॉस ईजिली, ठीक है। ये इसका लेवल है, ठीक है। 97 से 85 के बीच में एक बार हो सकता है दोबारा यहाँ पर एंट्री हमें मिले, अगर एक बार स्टॉप लॉस काट देगा ना तो दोबारा यहाँ पर 95 से 85 के बीच में दोबारा से वो वाले चांसेस बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी कैपिटल का सिर्फ 3 to 4% ही आपको डिप्लॉय करना है। एंड अगर यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस कट जाता है दैन यू कैन री एंटर इन दिस रेंज एज वेल 97 to 85। अगर यहाँ से आपको दिखता है कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है या कोई और चीज़ आपको सेटअप दिख रही है, डबल बॉटम वगैरह कुछ दिख रहा है ऐसे, ठीक है, उस हिसाब से। बट अगेन इसके नीचे आने के चांसेस मेरे को लगता है एज पर माई एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस की कम है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, भाई मार्केट है, कभी भी कुछ भी कितना भी कर सकता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ऑलराइट। एंड यहाँ से अपसाइड के पोटेंशियल टारगेट्स करीबन 60-70% के हैं फॉर द ऑल टाइम हाई, आई एम एक्सपेक्टिंग इट। बाकी देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज द कंप्लीट शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ द गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड फॉर 2025 एंड 2026 रेंज। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस, जय श्री राम।